Okay, so yesterday we have discussed about the rules for writing the electronic configuration. So what are the rules by which you can write the electronic configuration? So first and very important rule, that is Aufbau principle. That is clear to all of you. What is Aufbau principle and how we can arrange the orbitals in increasing order. Okay, 1s, then 2s, then 2p. So Aufbau principle, according to this, electrons first filled at low energy orbital, that is means electron first filled at 1s orbital, then 2s, then 2p, and so on. Okay. What is the second principle? That is, first is the Aufbau principle, second is the n plus L rule. According to this rule, already we have discussed two orbitals. Electrons always enter the low energy n plus L value, and if two orbitals having the same n plus L value, then we have to check the lower n value, right? Okay. Now the next rule which we have studied, that is a Hund's rule of maximum multiplicity. According to this, the electron first filled single in each orbital, then start pairing. Okay, means suppose in p orbitals, first electron filled in px, py, pz, then again start pairing. Okay, same for d and other orbitals. Okay, now the next is the Pauli's exclusion principle. It states that no two electrons have the same set of all four quantum numbers. If suppose three quantum numbers will be same, the fourth one will be different, as we have taken one example. Okay, now the last rule, which also important for writing the electronic configuration, that is half filled and full filled. According to this, the half filled and full filled configuration much more stable than incomplete configuration. As for example, if the configuration is D4 and D5, so D5 configuration is more stable than D4 configuration because D5 is half filled. Similarly, for D9 and D10, the D10 is more stable than D9 because D10 is the fully filled. So what is the reason for that? Why half filled or full filled electronic configuration much more stable than incomplete configuration? The reason is that half filled and full filled, in half filled and full filled orbitals, the electrons are equally distributed, symmetrically distributed, and due to symmetry, more stable. And the second reason is the half filled and full filled have higher exchange energy rather than other configuration, and hence it is more stable. D5 is more stable. Similarly, D10 is more stable. What is the meaning of higher exchange energy? That already we have discussed. Side D4 you can see. For D4 the exchange energy value is what? 6, and for D5 the exchange energy value is 10. Okay. I hope it is clear. Up to this one is clear. Yes or no? Everyone? Okay. So now if you have understood about all the rules, then you can easily write the configuration. So now we are going to discuss for configuration. Even you also write the configuration. First I will explain one or two, and then after you can write it. Okay. So now the next I'm going to discuss. Okay. So I'm giving the question. Write electronic configuration of atomic number (17). Okay. How to write it? How to write it? Anybody? So all of you know what is the procedure for writing the configuration. I'm going to start from 1s2 and Yeah. 1s2 2s2. Yeah. So you have to start you have to see the Aufbau principle. You have to see the energy order. Which one is the low energy? 1s. So in an orbital, Pauli exclusion principle also states that in an orbital maximum contains 2 electrons. So S has only 1 orbital, so S में maximum electrons 2 हो गया. When the first, okay, so you have to write the electronic configuration according to increasing energy. Okay, all of you know 1s. After that what? 2s, then 2p, then 3s, then 3p, and so on. First we'll finish up to this, then we'll see whether more orbitals are required or not. Okay, 1s2. Okay, s में maximum कितने fill कर सकते हैं? 2, that is 2s2. p has maximum 6 electron, 2p6.
3, ओके। आपको पता है S में आप 2 फिल कर सकते हो, P में 6 कर सकते हो। जब P 6 होता है तो हम नेक्स्ट ऑर्बिटल पे शिफ्ट करते हैं। देन यहाँ पे क्या हो गया 3s2, ठीक है। नाउ फर्स्ट यू काउंट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स नंबर, 2 + 2 + 6 + 2, व्हाट्स कमिंग, इट इज 12, ओके। 12 यानी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल लेफ्ट, 5। तो जो इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं दैट ऑलवेज बी फिल्ड एट द लास्ट energy orbital, that is p5, okay. Now this is the configuration of atomic number 17. So last electron is entering in which orbital, p orbital. So when electron enter in which, when the last electron enter in which orbital, that is called that block element, because you know there is a 3 block element, s block, p block, d block, F ब्लॉक। तो ये जो तुम्हारे ब्लॉक्स बने होते हैं वो तुम्हारे कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे होते हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस ब्लॉक में जा रहा है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन P में एंटर करता है तो उसे P ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, राइट। तो जैसे यहाँ पे लास्ट तुम्हारा इलेक्ट्रॉन P में गया तो दिस इज P ब्लॉक एलिमेंट, ओके। मीन्स आई वॉन्ट टू डिस्कस 2 मोर थिंग। एक तो तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें लिखना आ गया, ठीक है। सेकेंड, तुम इसकी पोजिशन बता सकते हो इन पीरियोडिक टेबल। You can also predict the position in periodic table कि ये जो तुम्हारा 17 एटॉमिक नंबर है ये पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है, किस ब्लॉक में है। सो बाय कॉन्फ़िगरेशन वी कैन डिस्कस सो मेनी थिंग। क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं, एक तो पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अगर तुम्हें इसी एलिमेंट की, मान लो एग्जाम में हमने क्वेश्चन ये दिया है कि राइट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट विच एटॉमिक नंबर 17 इन पीरियोडिक टेबल, तो मान लो क्वेश्चन तुम्हारा ये आता है कि कोई एटॉमिक नंबर दिया हुआ और उसकी पोजीशन तुम्हें पीरियोडिक टेबल में फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए भी तुम्हें फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा और कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू तुम इसकी पोजीशन बता सकते हो। पोजीशन में हमें क्या क्या चेक करना होता है, वी हैव टू चेक which group it belong to, that element, जो भी element ले रहे हो, that element belongs to which group, which period, which block। तो हमें 3 चीजें फाइंड आउट करनी होती है, which group, which period, which block, ठीक है। 3 चीजें फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। ब्लॉक तो हमने इजिली फाइंड आउट कर लिया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन P में जा रहा है तो दैट इज P ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद हमें पीरियड भी हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पीरियड मींस हाईएस्ट शेल नंबर, व्हिच वन इज द हाईएस्ट शेल नंबर, यू कैन सी व्हाट इज द हाईएस्ट शेल नंबर, ये तुम्हारा पीरियड को बिलोंग करता है। तो हाईएस्ट तुम्हारा 3rd लिखा हुआ है तो पीरियड इज 3rd पीरियड, ओके, इट इज 3rd पीरियड, ठीक है। नाउ ग्रुप के लिए थोड़े से रूल्स हैं जो मैं तुम्हें साइड में बताती हूँ। अगर तुम्हें ग्रुप आइडेंटिफाई करना है तो एस के लिए कैसे आइडेंटिफाई करोगे, एस के लिए 2 ही ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। इट डिपेंड, अगर S1 है, लास्ट इलेक्ट्रॉन S में जा रहा है तो वो S ब्लॉक हो गया, अगर वो S1 है तो फर्स्ट ग्रुप हो गया, S2 है तो सेकेंड ग्रुप हो गया। तो S ब्लॉक एलिमेंट के लिए 2 ही ग्रुप्स होते हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, दैट डिपेंड्स S1 है या S2 है, ठीक है। अगर तुम्हारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जैसे P में गया तो ये P ब्लॉक एलिमेंट हो गया, और P ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे, P ब्लॉक के लिए आप 12 प्लस P इलेक्ट्रॉन कर सकते हो, 12 प्लस P और P इलेक्ट्रॉन्स, जो भी तुम्हारे P के इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो 12 प्लस 5 क्या हो गया तुम्हारा 17, ओके। So for P, how to identify the group for the P block element? For P block element, always आपको जो भी P के इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको आप 12 से ऐड ऑन कर दो, तो what it's coming? Tell me. 17 group. I hope it is clear. समझ आ गया। अगर एग्जाम में आता है कि 17 एटॉमिक नंबर कोई एलिमेंट है, उसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल बताओ, तो पहले आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा, कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आपने सब कुछ बता दिया, किस ब्लॉक में है, किस पीरियड में है, किस ग्रुप में है, ठीक है। अच्छा, दिस इज फॉर द पी ब्लॉक एलिमेंट। इफ आई आस्क फॉर डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के लिए मैं आपको एक यहाँ पे रूल बता देती हूँ कि डी ब्लॉक अगर आता है तो उसके लिए ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। फॉर डी ब्लॉक, for D block we have to check
डी इलेक्ट्रॉन्स, जो भी तुम्हारे डी के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो, प्लस एनएस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो डी के लिए हमें डी के इलेक्ट्रॉन एंड एस के इलेक्ट्रॉन को ऐड ऑन करना होता है, दैट इज सेइंग दैट ग्रुप। और एफ ऑर्बिटल के लिए चूंकि पीरियोडिक टेबल में एफ को एकोमोडेट करना डिफिकल्ट है, उसको हमने नीचे रखा है, दैट इज कॉल्ड लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड सीरीज। इसलिए अभी एफ के लिए हम पीरियड बता सकते हैं, ब्लॉक बता सकते हैं, बट ग्रुप वो सिर्फ सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम थर्ड ग्रुप में डिनोट करते हैं। ठीक है, बिकॉज इसके लिए कोई भी हमारा पीरियोडिक टेबल एक्सपैंड नहीं हुआ है, तो वी कैन नॉट से एनी पर्टिकुलर ग्रुप। तो यहाँ पे एफ के अगर कॉन्फ़िगरेशन लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में आता, अगर कोई एफ ब्लॉक एलिमेंट है तो उसके लिए आप पीरियड तो बता सकते हो, बट ग्रुप यू हैव टू राइट ओनली थर्ड पीरियड। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, आफ्टर नोइंग दिस थिंग, अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो तुम अब इसके बाद कोई भी कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हो, उसकी पोजीशन भी साथ में बता सकते हो। Okay. So shall I give one question for you, everyone? Yes or no? Yeah, ma'am. Okay. So now next page I am giving the question. This is for your reference. This is for your concept. Now I am giving the question for you and you have to tell बेटा, आपको थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। जैसे मैं 12th के साथ इतने सारे क्वेश्चंस कराए, आई डिड नॉट, उन्होंने बच्चों ने सॉल्व किया था सारे, क्योंकि ऑर्गेनिक में हमारे बहुत कन्वर्जन्स होते हैं, रीजनिंग होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, कंप्लीट इक्वेशन होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा, सिर्फ वन वे नहीं होगा। ठीक है, नाउ आई एम गिविंग क्वेश्चन। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना है तुम्हें, सेम है। आई एम गिविंग क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द पोजीशन। ऑब्वियस है कि इसके लिए तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन लिखना ही पड़ेगा। एक साथ में और पार्ट भी मैं ऐड कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड। Now I'm giving the question, predict the position, and एक और पार्ट में दे रही हूँ। सेकेंड पार्ट अगर मैंने इसी में एक और चीज ऐड कर दिया होता, also predict all four quantum numbers of its valence electron। इसका मतलब जो भी एलिमेंट दिया हुआ है 17 एटॉमिक नंबर, इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है तुम्हारा, विच वन इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो तुम्हारा दिस 3p ऑर्बिटल इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब मैंने इसमें तुम्हें एक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को दिया, पोजीशन मैंने पूछा, साथ में हमने कहा कि जो भी तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके चारों क्वांटम नंबर्स भी आप प्रेडिक्ट करो। तो क्वांटम नंबर प्रेडिक्ट करने के लिए ओके, आपको चारों क्वांटम नंबर प्रेडिक्ट करना है। कैसे करोगे आप? ठीक है, व्हाट आर द फोर क्वांटम नंबर, बोलो। n, l, m, s, राइट। ठीक है, अब मुझे बताओ ये जो तुम्हारा 3p है, दिस इज 3p इज द आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देती हूँ, ये जो तुम्हारा 3p5 है, इसके आपको चारों क्वांटम नंबर्स बताने हैं। ठीक है, तो यू टेल मी व्हाट आर फोर क्वांटम नंबर्स, फटाफट बताओ। इसकी n वैल्यू क्या होगी? राइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 to 30. Okay, we are discussing that. Up to class 11, 10, sorry, you are aware about the elements up to atomic number 20. तो ये तुम घर पे configuration लिख लेना. So you will write the configuration from atomic number 1 to atomic number 20. That is hydrogen, helium. What is the next element? Lithium. बोलो. Lithium, beryllium. Next. Boron, next, carbon, next, nitrogen, next beta, Oxygen, fluorine, neon, then after sodium, then magnesium, बोलते जाओ, aluminium। बोलते जाओ। मैम उसके आगे का हल्का सा कंफ्यूजन होती है मुझे। Aluminium, we'll say the next,
Silicon, Silicon. Next. phosphorus, Phosphorus. Next. sulfur, Sulfur. Next. chlorine, Chlorine. Next. argon, Next. potassium, Next. calcium. calcium, Next. आगे भी बता दे वैनेडियम. No. वैनेडियम ही होता है ना? ठीक है. स्कैंडियम होता है. स्कैंडियम होता है. 10th क्लास तक तुमने ना ये किया है. एटॉमिक नंबर 1 2 3, बेरिलियम का 4 5 6 कार्बन, नाइट्रोजन 7 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन कितना होता है? 13 के बाद क्या आता है? 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, chlorine 17, argon 18, potassium 19, calcium 20. Okay, so you will write the configuration at home. ठीक है, आराम से घर पे करना. यहाँ तक तो ऑलरेडी यू आर अवेयर अबाउट द एलिमेंट्स ऑल्सो, लेकिन इसके बाद तुम्हारा 21 से 30 तक भी तुम्हें अब याद रखना है. ठीक है, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे 11th में एज वेल एज इन क्लास 12th ऑल्सो, कि कई बार आपको एलिमेंट के बारे में कुछ पूछा जाएगा, तो यू शुड नो कि ये एलिमेंट कौन सा है, इसके एटॉमिक नंबर क्या है. ठीक है, सो आफ्टर दैट ये जो तुम्हारा है 20 के बाद जब तुम्हें अब याद करना है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, yes, cobalt, yes, nickel, yes, निकल, Copper, कॉपर एंड जिंक. yes, zinc. Good. So this is from atomic number 21 to 30. ठीक है, लाइन से हो जाएगा 21, 22, 23, etc. Okay. This is 23, this is 24, this is 25, 20, iron का atomic number 26, cobalt 27, 28, 29 and 30. ठीक है. So now you have to write the configuration of any one configuration you write. You can write all the configuration. ठीक है. Scandium. What is the configuration of scandium? Anybody can say? ma'am, AR4, 4 Yeah, 4s2 correct. 3d1. 3D1. 4s2 3d1. Very good. I want. So today my discussion in the form of noble gas configuration. Correct. So simply what you write, that is a very big configuration. Even I also don't want to write in such a big configuration. 1s2, 2s2, 2p6, okay, 3s2, 3p6, 4s2, 4:3D1. okay, according to energy. So these are the inner configuration, okay, and this is the valence configuration. So outermost configuration is 4:3d1. So in all cases you get the same type of configuration. Okay, just chromium का थोड़ा छोड़ देते हैं. Titanium का भी same होगा 4:3d2. So 1 electron will be added in d orbital. ठीक है, 4s2 सब में common होगा. Vanadium का क्या होगा बच्चे? 4:3d3. 3d. 3D3. क्या आएगा? क्रोमियम का 4s1 3d5. हम क्रोमियम डिफरेंट होता है. Yes. तो जैसे ही हमने Yes, 4:3d5 लिखा, तुम्हारी आवाज आ गई कि यहाँ पे क्रोमियम का ये नहीं होगा. So it is not the correct configuration. ठीक है, what will be the configuration? 4s1. 4s1 3d5. ma'am, 4S1 3D5. अब क्वेश्चन है why the chromium configuration is this? हम एनर्जी की वजह से और हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड मैम, ज्यादा stable करने रहता के है. लिए ठीक है, वेरी गुड. सो व्हेन ऑर्बिटल को हाफ फिल करके वो स्टेबल हो जाता है. तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि why chromium configuration is this, not this. So you can easily write because it is which configuration? Half filled and full filled, and you can write that concept कि half filled full filled configuration is more stable due to higher exchange energy and symmetrical distribution of electron, right? Reason के साथ लिख सकते हो. ठीक है. Now when we go for this manganese, what is the configuration now? 4s2 3d5. Now it will be 4:3d5, okay, because it is highly stable configuration because D is half filled and S is full filled.
So chromium is a stable configuration. Manganese is also very stable configuration, but this is not exceptional configuration. Only the chromium has exceptional configuration, and white has the exceptional configuration because of stable half filled and full filled. Okay, half filled. Okay. Now इसके बाद तुम्हारा स्मूथली चलता जाएगा like this. आयरन का भी सेम 4s2 बोलो 3d6. ओके, कोबाल्ट हो गया, निकल ऑल्सो, सॉरी मैग्नीज हो गया, ये आयरन हो गया ना, दिस वन इज फॉर आयरन. ओके, कोबाल्ट का 4s2. कोबाल्ट ऑल्सो 4s2 3d7. निकल 4s2 3d8 up to no problem. Okay, copper 4s1 3d10. 4s1 3d10. 4s2 3d9. गलत है मैम, गलत है. फिर से हमारी यहाँ पे ठीक है, हमने बड़े आराम से भरा जैसे हमें पता है, बट स्टिल इट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे फिर से हमारा एक और कॉन्सेप्ट वही वाला आ गया, फिर से ये रॉन्ग हो गया. व्हाट इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन? 4s1 3d10. that is stable configuration. Fulfilled is more stable configuration, and reason is again same. ठीक है. So what you are observing, this is also exceptional configuration. So chromium and copper both have exceptional configuration, and what is the reason for exceptional configuration? Because of half-filled and full-filled, right? And the zinc is again normal configuration. There is again no problem. So what is the zinc configuration? Last configuration is that. What is the zinc configuration? That is normal. Okay. So we are going to the next. Okay. Zinc you can write, because I'm not getting the space to write over here. Okay. और नीचे पूरा तुम्हारा दिख रहा है, that scroll नहीं हो पा रहा है. Okay. So I think that you can write it. Okay. So now you can see what is the configuration. 4s2 3d10. Okay. So now I hope it is clear to all of you. ठीक है. But again another thing ki when we write the configuration such very big atomic number like 85, 88, 100, so it is very difficult to write 1s2, 2s2, 2p6 terms. Okay, so we can write the electronic configuration in terms of noble gas configuration. Okay, so now we can see what is a noble gas configuration. So first you tell me all the noble elements. Tell me the noble elements. Helium, neon. Neon, argon, krypton, xenon, radon, and oganesson. Okay. Oganesson. That is coming in the next period, 7th period. Okay. Okay, that Yes, is ma'am. That's man-made. What is the atomic number? Helium, neon. Neon ka atomic number is 10. बोलते चलो. 18. 18. Next. बोलो. 36. 54. 86. Okay. So these are the atomic number. Okay. You can see किसी भी group में अगर तुम एक element का atomic number जानते हो, सिर्फ इस group में एक helium addition आ जाता है. So you can add 8. सब में 8 ऐड कर सकते हो. नेक्स्ट प्लस 8, नेक्स्ट 8, 8, 18, 18, 30, 32 अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर फॉर्मूला. ठीक है. तो इफ यू नो द एटॉमिक नंबर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, यू कैन राइट ऑल एलिमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर ग्रुप that atomic numbers. ठीक है.
So what are the configuration? Just you write कि helium का configuration तो बहुत simple है, that is 1s2. Neon का क्या होता है बोलो? 1s2, 2s2, 2p6. So you know the noble gas configuration except helium, all the outermost configuration is what? ns2 and p6. सबका outermost configuration octet complete होगा, 8 होगा, that is ns2 and p6, 2s2 2p6. So simply what we can write of this configuration, we can write in the terms of noble gas configuration भी लिख सकते हो. तो तुम यहाँ पे 1s2 की जगह तुम simply helium लिख सकते हो and you can write the outermost configuration 2s2 2p6. helium के ऊपर चाहो तो atomic number 2 भी डाल सकते हो. ठीक है, सेम तुम सबका लिख सकते हो. What is the next configuration? 1s2, 2s2, 2p6. ठीक है, इसके बाद क्या होगा तुम्हारा? 3s2, 3p6. This is the valence configuration. But यहां तक तुम्हारा क्या दिख रहा है? What is this? This is coming. neon 3s2 3p6. मैं यहाँ इतना बड़ा ना लेके तुम्हें पता है कि जब तुम्हारा एटॉमिक नंबर 18 है तो उसका नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? नियॉन होगा. तो जो भी तुम्हारा एटॉमिक नंबर होता है उसके जस्ट पहले वाला नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यानी उसके पहले वाले तुम नोबल गैस को लिख सकते हो. दैट इज नियॉन. यू कैन राइट नियॉन 10 एंड देन यू कैन राइट 3s2 3p6. दिस इज द वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन, राइट? ओके, व्हाट विल बी द क्रिप्टॉन? क्रिप्टॉन में भी सेम ऐसे लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. यहाँ तक तो कॉमन रहेगा, इसके बाद तुम्हारा यहाँ तक तो सब कुछ सेम रहेगा. ठीक है, व्हाट विल द आउटर मोस्ट? 4s2 3d10 4s2 3d10 फिर 4p6. ओके, ये तुम्हारा आउटर मोस्ट हो गया. तो ये तुम्हारा कॉमन हो गया. दिस वन इज कॉमन. तो व्हाट वी कैन राइट ओवर हियर? अब हमें इसको क्या लिखना पड़ेगा? हीलियम के बाद क्या लिखोगे? हीलियम, नियॉन. इसके बाद क्या लिखोगे? आर्गन 18 करोगे और उसके बाद तुम लिखोगे. अब तुम अरेंज करके लिख सकते हो. ऑर्बिटल को शेल के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो. कौन सा शेल पहले आता है? थर्ड शेल पहले आता है, फोर्थ शेल बाद में आता है. तो तुम इसको जैसे जो हायर शेल है उसको बाहर कर दो और जो लोअर शेल है उसको अंदर कर दो. इसको हम कहते हैं अरेंज करते हैं. एनर्जी ऑर्डर के अकॉर्डिंग तुमने ये लिखा, बट अरेंज करके जब लिखते हो तो तुम्हारा 3D जब तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन फिल्ड हो जाता है उसके बाद जो लोअर शेल होते हैं वो अंदर आ जाते हैं, हायर शेल बाहर चले जाते हैं. तो यहाँ पे तुम्हारा अरेंज करके कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? आर्गन 18 3d10 4s2 4p6. अगेन द आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इज कमिंग सेम. सब में तुम देखोगे आउटरमोस्ट ns2 np6 आएगा. आर यू गेटिंग द पॉइंट ऑल ऑफ यू? समझ आया सबको? इज इट क्लियर? मैम एक बार फिर से बताना. मैं बता रही हूँ. इसको थोड़ा मुझे erase करना पड़ेगा, स्पेस. ठीक है, ओके. जैसे मैंने यहाँ पे ज़ेनॉन का रब कर दूं क्या? वेट बेटा. Again, I'm repeating. Okay. So this is the krypton. Argon, up to argon, there is a no problem. But when you go for the krypton configuration, okay. So what you see, what you write, पूरा लिखते हो ना इसमें? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Up to here you write. These are nothing but this is the प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. तो तुम इतना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन ना लिख के तुम सिंपली इसकी जगह क्या लिख सकते हो? आर्गन लिख सकते हो. आर्गन 18. ठीक है, आर्गन तो तुम इतने बिग कॉन्फ़िगरेशन की जगह तुम लिख सकते हो आर्गन 18. ओके, एंड हेयर यू कैन राइट. यहाँ तो तुमने आर्गन 18 लिख दिया. ठीक है, इसके बाद जो तुम्हारा शेल आता है उसको अरेंज कर दो शेल नंबर के अकॉर्डिंग. कौन सा शेल पहले आता है? थर्ड शेल. सो यू कैन राइट 3d10 फर्स्ट एंड देन 4s2 4p6. So when you are writing the configuration, okay, you write according to energy order, no problem. But then after you can arrange it. Okay.
अगर एग्जाम में तुमने ये भी लिख दिया तो देर इज अ नो प्रॉब्लम, बट बेटर नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम कॉन्फ़िगरेशन तो एनर्जी ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखेंगे, बट उसके बाद उसको अरेंज करेंगे। अरेंज करने का रीजन क्या है? ओके, ये तो तुमने कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन फिलिंग करा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन रिमूवल करते हो तो इलेक्ट्रॉन किससे रिमूव होता है? पहले आउटरमोस्ट शेल से रिमूव होता है। सपोज इसमें अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो पहले पी से रिमूव होगा। जब पी के सारे 6 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे तो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो डी से नहीं रिमूव होगा, वो तुम्हारा 4s से रिमूव होगा, बिकॉज द outermost is fourth shell is the outermost shell, third shell is not the outermost shell. तो जब इलेक्ट्रॉन रिमूवल की हम बात करते हैं तो ऑलवेज outermost shell से रिलीज होता है, ठीक है? Is it clear? So this is the reason कि we have to arrange them. So you have to write in this way. Okay, I'm just giving one more example. You can see one more example. Next configuration. No, not more example. Helium, neon, argon, krypton. What is the next element? Bolo. That is xenon. Okay. Sorry. Xenon. What is the atomic number of xenon? 54. ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है, 54, यहाँ पे प्लस 18 हो रहा है तुम्हारा यहाँ भी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अब यू टेल मी व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन? शुड वी राइट ऑल दिस 1s2 2s2 इतना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन लिखे? नो नीड टू राइट। जेनॉन के पहले कौन सा नोबल गैस आ रहा है? विच वन इज द प्रीवियस नोबल, विच वन इज द बिफोर दैट नोबल गैस? व्हाट विल राइट? जेनॉन के पहले जो आ रहा है तुम वो लिख दो। व्हाट यू कैन राइट, बोलो। Krypton. Yeah, we can write krypton and we can write 36. इसके बाद क्या लिखोगे? Tell me. ठीक है, तो यहां भी तुम स्टक कर गए, तुम्हें समझ नहीं आया क्या लिखना है, ठीक है। क्रिप्टन का जो मैंने आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखा था वो क्या लिखा था? व्हाट वी हैव रिटन? 4s2 4p6, ठीक है, 4s2 4p6। अब 4p के बाद जो नेक्स्ट एनर्जी ऑर्बिटल आता है दैट यू हैव टू राइट। व्हाट इज द नेक्स्ट एनर्जी ऑर्बिटल? 5s। 5s2 4d10 5p6। व्हाट वी कैन समथिंग अरेंज, क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा अरेंज क्या कर सकते हैं, बोलो। हम इसको अरेंज करके कैसे लिख सकते हैं? यस, Ma'am, 4d10 5s2 5p6. Again, the outermost is NP, NS to NP6. हो गया? I think that now it is clear to all of you. बोलो, yes or no? Nobody is saying anything. Not clear? I'm clear. ठीक है, अब रेडॉन का लिखना है तो what is the nearest noble gas configuration? Xe अगर यहाँ Xe समझ 4f14 5d10 6s2 Xenon होता है 6p6। अक्षत। जेनॉन का मैंने आउटर मोस्ट Xenon भी तो नीचे लिखा। लिख दिया, 5s2 5p6। इसके बाद 5p6 के बाद नेक्स्ट व्हाट ऑर्बिटल इज कमिंग? 6s2 4f14 5d10 5d10 6p6। बट इसको अरेंज करके कैसे लिखोगे? हाउ विल राइट इट आफ्टर अरेंजमेंट? 5d10 4f14 6s2। या जेनॉन तो रहेगा आगे, इसके बाद तुम इसको 4f14 5d10 6s2 6p6, ठीक है, right? So this is the nearest noble gas configuration. So you can see the outermost in all cases, the outermost is coming same, ठीक है, this is the outermost configuration. That means outermost is coming NS2 NP6. क्लियर है कि नहीं है? Yes, ma'am. ओके। मैं एक और तुम्हें थोड़ा सा और इसको अच्छे से बता देती हूँ, ओके।
एक काम करो, तुम्हारे पास कितने फिंगर्स हैं? हाउ मेनी टोटल फिंगर्स डू यू हैव इन वन हैंड? 5. कितना सोचना क्यों पड़ा? ओके, इन 5 फिंगर्स को स्टार्ट करो। हमेशा हम स्टार्ट करते हैं छोटी वाली फिंगर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इसको क्या फिंगर नाम कहते हैं? स्मॉल फिंगर जो होता है, सबसे छोटी फिंगर जो होती है मेरी। फिंगर्स का नाम बताना जरा, फिंगर्स को स्टार्ट करते हैं। और मैं अपना वीडियो ऑन करना पड़ेगा, ठीक है? बोलो, स्मॉल फिंगर्स के साथ बोलो क्या कहते हैं। Say something. Nobody is saying, huh? अक्षत बोल। नहीं, why अक्षत will say? Okay. जैसे अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो जस्ट इमीडिएटली पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पीरियड, इन फर्स्ट पीरियड ओनली 2 एलिमेंट्स कम, ठीक है? दैट इज 1s1 एंड 1s2, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड पीरियड में यू नो देयर इज ओनली 2 एलिमेंट्स कम्स, हियर 8 एलिमेंट्स कम, और 8 एलिमेंट्स में तुम्हारा क्या आता है? 2s, फिर 2s1, 2s2, 1 to 2 आता है, ठीक है? इस साइड के 2 ग्रुप्स आते हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, ठीक है? मैं पूरा पीरियोडिक अभी नहीं बता रही हूँ, पहले तो मैं एनर्जी ऑर्डर बताती हूँ, उसके बाद से तो मैं कॉन्सेप्ट और बताऊंगी। सेकेंड पीरियड में तुम्हारा 2s आता है, 2s जब फिल होता है तो तुम्हारा 2p आता है, ठीक है? यानी एनर्जी ऑर्डर तुम्हारा सबसे लोअर एनर्जी क्या हो गया? 1s। उसके बाद नेक्स्ट एनर्जी ऑर्डर क्या होता है? 2s एंड 2p। जब थर्ड शेल में आते हो, आई मीन थर्ड पीरियड में आते हो, एक ही मतलब है थर्ड शेल और थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में तुम्हारा 3s आता है और फिर 3p आता है, ठीक है? इसमें भी तुम्हारे 8 एलिमेंट्स ही होते हैं। जब तुम फोर्थ पीरियड में आते हो तो वहां पे तुम्हारा क्या होता है? 4s आता है। अच्छा, तुम ध्यान से देखना, जो पीरियड में आते हो वही तुम्हारा s और p आता है। सेकेंड पीरियड में 2 है तो 2s 2p। ये जो तुम्हारे पीरियड के नाम मिले हुए वो n की वजह से मिला हुआ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वजह से है। अगर तुम थर्ड पीरियड में आते हो तो दैट इज 3s, 3 नंबर आता है, दैट इज 3 एंड 3, 3s 3p। अच्छा, जो s का नंबर और जो p का नंबर होता है वो हमेशा सेम होता है एज n वैल्यू। s और p जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इक्वल होता है और वो पीरियड नंबर के भी इक्वल होता है, ठीक है? अगर हम फोर्थ पीरियड की बात करते हैं तो तुरंत, और तुम्हें पता है पीरियोडिक टेबल में स्टार्टिंग जो भी तुम्हारा पीरियोडिक टेबल होता है, दिस इज अ पीरियोडिक टेबल, ठीक है? इस पीरियोडिक टेबल में सबको पता है कि तुम्हारा पहले s आता है, फिर बीच में d होता है, फिर p होता है। यानी स्टार्टिंग तुम्हारा s होता है और एंड किससे होता है? p से होता है, वो भी p6 एंड होता है। बीच में तुम्हारा d ऑर्बिटल आता है, ठीक है? तो जब हम फोर्थ पीरियड की बात करते हैं तो हमें पता है 4s आएगा और एंड में 4p आएगा, ये तो कॉमन हो गया। बट जैसे हम फोर्थ पीरियड की बात करते हैं तो तुम्हारा एक d ऑर्बिटल भी आ जाता है, क्योंकि d जो होता है हमेशा s और p से 1 माइनस होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ गया? 3d आ गया, एक d ऑर्बिटल आ गया। तो एनर्जी ऑर्डर देखो, सबसे लो एनर्जी क्या है? 1s, फिर क्या हो गया? 2s 2p, 3s 3p, फिर 4s 3d 4p। जब फिफ्थ पीरियड में आते हो तो तुम्हें अब पता है कि s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होते हैं? 2, d में कितने होते हैं? 10, p में कितने होते हैं? 6। तो तुम्हें यहीं से पता चल गया कि फोर्थ पीरियड में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो एकोमोडेट हो सकते हैं एलिमेंट, दैट इज 18। क्योंकि ये जो एलिमेंट मैक्सिमम एकोमोडेशन होता है वो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होता है, ठीक है? सो व्हेन वी गो फॉर द अब नाउ आई थिंक दैट तुम खुद मुझे बता